नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कीर्ति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पी.आर. शंकर सर, प्रोफेसर एट IIT and Madras and fellow at CLAWS. Why can't I see the numbers? And that is why I was little, yeah, now it's there. So, interesting मुद्दा है। पाकिस्तान बहुत सारी बचकानी हरकतें कर रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। जैसे होता है ना, मतलब आप कितना भी समझा दो, डांट दो, पीट दो, पटक दो, बट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड। कुछ लोगों को दिस कॉल्ड चिकना घड़ा, और यू कैन ऑलवेज से थिक स्किन। दे डोंट लर्न from even beatings. Lot of things Pakistan is doing, and we'll be covering that with sir. Sir, a very warm welcome on the show. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अच्छा हुआ आपके साथ काफी पिछले हफ्ता मिस हो गया, सो वी आर मेकिंग इट अप टुडे। And what are the issues you want to discuss? Let's put the issues up first, and then we'll take it one by one. So Pakistan and China have been doing a lot of things in the background, and a lot of meetings have been happening. There is a latest speech from Asim Munir. Then there is a new topic that has come out, Tulbul project, and strangely that was suggested by Omar Abdullah. That was very interesting for me also. Then couple of meetings have happened in Pakistan. So what exactly is Pakistan up to? We'll take one by one. Ji. Okay, चलो, should we start with Asim Munir? चलिए, असीम मुनीर से हम शुरू करते हैं कि खैर मोटा टॉपिक है कि भाई पाकिस्तान कर क्या रहा है आजकल। व्हाट इज पाकिस्तान अप टू? क्योंकि पाकिस्तान और असीम मुनीर दोनों का दिमाग शातिर दिमाग है। वो हमें पता होना चाहिए हर वक्त ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग एंटी इंडिया हर वक्त चलता है। और पाकिस्तानी होना एंटी इंडिया है इनका सोच, राइट? सो ये सोच क्या है, इसके बारे में अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, परखना और उसके विपरीत एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने बोला, हाल ही में 2-3 दिन पहले इसने ये असीम मुनीर ने एक भाषण दिया, उसका अपना नेवल कॉलेज में की पासिंग आउट में। अगर वो वीडियो है, अगर आप ऑन करेंगे तो विल सी व्हाट द content of the video is, and फिर उसके ऊपर चर्चा करें। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ Wallahu khairul makirin. And they planned, and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The world must realize that without a just and peaceful resolution to the Kashmir issue, regional peace will forever remain elusive, with perpetual danger of conflict in South Asia. I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and to those who continue to struggle for the right of self-determination. Their valor and perseverance will never be diminished by the brutal and oppressive occupying regime. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support to the valiant people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, while the enemies of Pakistan continue unabated efforts to stall our destined rise, our journey to glory. राइट, तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा क्लिप में इसका एक ही रट था, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और या वी कैन टेक दिस क्लिप ऑफ ये Do people in Pakistan understand the grammatical English that Asim Munir is speaking? My first question should be that actually. देखिए, बात यह है कि सबको पता है ये कर क्या रहा है, ये कश्मीर का रट लगा रहा है। ये टॉक इम्पोर्टेंट क्यों है? इसी टाइप का बातचीत इसने पहलगाम का
कांड जब हुआ था उससे पहले भी किया था, अप्रैल 22 को हुआ था, ये अप्रैल फर्स्ट वीक में कहीं इसने जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसके साथ ऐसे ही बात किया कि कश्मीर हमारा जुगुलर वेन है, ये वो वगैरह वगैरह, और तुरंत उसके 2 हफ्ते के बाद पहलगाम का नरसंहार हो गया और अभी ये शुरू हो रहा है। और वी हैव टू सी कि क्या ये इज इट अनदर एक्शन विच इज ही इज प्लानिंग इन कश्मीर, कश्मीर का रट लगा रहा है, और कि ये is it because to hide other things which are happening in Pakistan? These two things we have to see, right? So let us see ki bhai, why is he speaking of Kashmir? It is possible that he wants to have another episode there. So the first thing is we should be, our intelligence people should be clear. अगर ये बात कर रहा है तो वहां हो क्या रहा है, कुछ खबर भी है कि ये कुछ प्लान कर रहा है, so we should diffuse that event, right? We should not allow that event to happen. If it happens, we should allow it to happen in a subdued manner or scotch that event, या उसको नाकार करना चाहिए. So intelligence is important in this, right? If that event happens, we should know what we should do immediately. ये नहीं कि पहलगाम हो गया, उसके पहलगाम 22 तारीख को हुआ, तो और हम 6 मई तक हम वी वर वेटिंग. अगर हमें पता है कि कुछ होने वाला है, तुरंत अगर हम कर दें कुछ जवाबी हमला, तो फिर मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा, राइट? सो दैट इज द थिंग विच आई वांट टू फर्स्ट टॉक कि भाई देखो, ये इसने बोल तो दिया, हो सकता है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 15 दिन 20 दिन के बाद जो है ना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि और कोई घटना हो जाएगा एंड ये इसका जो असर खत्म हो जाएगा. So I think next 15-20 days are critical to see what Pakistan is up to. और अगर कुछ पाकिस्तान करेगा तो उसको हमारा we should नाकार करना चाहिए. अगर नाकार होने में we're not able to succeed in that, it's possible because you have to grant Pakistan because they have their ways of doing things. And there are enough people in Kashmir still, जो हालांकि कश्मीर में शांति है, सब कुछ है, पर कश्मीर में ऐसे भी अलगाववादी बहुत हैं अभी भी, वो पाकिस्तान को हेल्प करेंगे. उनके हेल्प के बिना पहलगाम का कांड भी नहीं हुआ होगा. So that problem is there, and accept the fact that they might defeat all your plans, because that's the way they operate. They have that expertise. But if they are successful, you should immediately have an answer to that. You should immediately have an answer to that. That is important, right? Now, that is one way of looking at it. कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दे दो, बड़ा सिंपल है, राइट? इसमें क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे देंगे, हम किस तरीके से देंगे. बिकॉज क्या हुआ, अभी हमने ऑप सिंदूर कर दिया, जो भी किया है हमें इतना याद होना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी जब भी हारता है युद्ध में, तो भले ही वो पिट जाता है, युद्ध में हार जाता है, सब कुछ हो जाता है, पर पॉलिटिकली जीत जाता है. अब का ऑप सिंदूर से पहले और अभी का हालत देखिए, पूरा देश पाकिस्तान उसका आर्मी के पीछे खड़ा हो गया है, राइट? आफ्टर ऑल देश है, 250 मिलियन पीपल है, चाहे भिखारी क्यों ना हो, भिखारी भी खड़े हो जाते हैं तो उनका भी वेट होता है. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि वी शुड डू नथिंग जहां पाकिस्तान का अवाम दोबारा इसके पीछे खड़ा हो जाए. खड़ा है तो और भी मजबूत ना हो. एक दूसरा, पहलगाम में के बाद और ऑप सिंदूर के बाद एक चीज हम कर नहीं पाए, वो हमारा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो है वो थोड़ा वीक रहा. इससे क्या है कि वी कुड नॉट कन्विंस पीपल कि भाई यहां से आया है प्रॉब्लम, और वी कुडंट कन्विंस व्हाट वी डिड. उसका आज तक उसका वो चलता रहा है, और ये हमारा प्रॉब्लम है.
और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सिस्टम्स आर वीक, और नैरेटिव जिस तरीके से हम बोलते हैं वो थोड़ा वीक है गवर्नमेंट की ओर से और बाकी माध्यम है उसे। सो इसने ये बोल दिया, तो फर्स्ट थिंग वी शुड डू, वी शुड हैव डन बाय नाउ। हम बात कर रहे हैं, अगर आप, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो भेजा है कि भाई देखो ये कुछ करने वाला है। तो अगर ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी बातचीत हो और इसका यू डू द राइट थिंग्स एंड यू बिल्ड अ नैरेटिव कि भाई ये दोबारा शुरू करने वाला है, ये कोई कश्मीर की मदद कर ये नहीं है, वो कहानी कुछ और है उसका। आई विल कम टू दैट। कश्मीरियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है इसका, राइट? ये उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी मरे या जिए, उनका हालत या उसके ऊपर कोई इसको लेन देन नहीं है। सो ये जो पर्दा है हमें फाश करना चाहिए, पर्दाफाश जब वो बोलते हैं। तो असलियत क्या है? असलियत तो इसके दो तीन कारण हैं। पहले तो एक हिस्टोरिकल बात है कि पाकिस्तान को पानी की जरूरत है, इंडस का पानी की जरूरत है, राइट? जब तक कश्मीर का मसला ऊपर हो फिर इंडस का मसला भी ऊपर रहेगा। अगर कश्मीर का मसला हट गया तो इंडस का मसला सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रहेगा और ये कोर्ट में जाते रहेंगे, इसका कोई समाधान नहीं होगा। सो ही इज ट्राइंग टू अगेन सेंसेशनलाइज कश्मीर, क्योंकि दुनिया में ये नैरेटिव है कि भाई कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है। कश्मीर इज नॉट द फ्लैश पॉइंट वाटर है। पर कश्मीर में जब वायलेंस हो जाता है और सब कुछ हो जाता है तो दिस इज इमोशनल अपील। सो पीपल अंडरस्टैंड दैट इमोशनल अपील एंड रिएक्ट टू इट। फिर लोग बोलते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर टू परमाणु देश हैं, तो इनके बीच में अगर लड़ाई हो गया तो कुछ हो जाएगा, तो डर भी है। तो ये जो नैरेटिव जो पाकिस्तानियों ने चलाया है कश्मीर के बारे में, ये अभी दोबारा चला रहा है। We should officially ensure that this narrative is not this thing, and we should say, look, this fellow wants water. और ये वाटर का कहानी जो है, इसने नहीं, परवेज मुशर्रफ जब एक कोर्स करने गया था यूएसए में, उसका जो पूरा डेजर्टेशन और उसका थीसिस जो है इसी के ऊपर था, और उस थीसिस में लिखा हुआ है क्या कि भाई हमें इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? पानी का प्रॉब्लम। कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है? पानी के लिए इंपॉर्टेंट। अगर पानी का मसला सॉर्ट आउट हो जाता है तो कश्मीर से उनको लेना देना है ही नहीं। उनको क्या करना है कश्मीरियों से? वो उनके पास वैसे ही 250 मिलियन भिखारी हैं, और भी लेके उनको भी भिखारी बना देंगे। जो अच्छा भला कश्मीरी हैं, जो फर्स्ट क्लास उनका प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उनको भी भिखारी बना देंगे। कश्मीरी तो नहीं चाहते होंगे, पर उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको पानी चाहिए, पानी, राइट? सो वी शुड नाउ स्टार्ट सेइंग कि भाई ये पूरा कहानी पानी के लिए कर रहा है। ओके, एक वो है। क्यों ये सब कर रहा है? क्योंकि हमने बोल दिया कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी हम बंद कर देंगे, हमें उसके ऊपर हम वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस इंडस वाटर ट्रीटी, सस्पेंड कर दिया। और फिर ये जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गए हेग में, हेग से इन्होंने कोई रूलिंग लेके आए हैं और फिर बोल रहे हैं कि ये जीत है। अगर आप आज के दिन पाकिस्तान के अखबारों में देखेंगे तो ये सब वो बोल रहे हैं, सब हमारा जीत हो गया, हमारा लीगल ये राइट है, इंडिया जो कर रहा है इलीगल कर रहा है, ये कहानी। सो आई थिंक, और हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो बोल दिया कि भाई ये हम मानते नहीं है, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज इलीगल बोला यहाँ तक। इट हैज गॉट नो राइट ऑन व्हाटएवर इट इज रिटन वगैरह वगैरह। बट आफ्टर दैट आई थिंक देयर हैज टू बी अ नैरेटिव, और यू हैव टू पुट योर केस अक्रॉस, जहां हम बोलेंगे भाई इसका असलियत क्या है, क्यों कर रहा है। असलियत तो ये है, असलियत तो दोबारा जंग चढ़ाना चाहता है, दोबारा कुछ जंग कराना चाहता है, कुछ वायलेंस करना चाहता है। कि we should now start talking of Pakistan as a state sponsor of terror.
ये दोबारा मौका दिया है, पहले बार हुआ तो पहलगाम हो गया, दोबारा होगा तो क्या होगा? और वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अगेन ऑफ दैट. सो दिस इज समथिंग विच वी शुड, ये हमने आज तक अभी तक शुरू नहीं किया. मेरे ख्याल में 72 घंटे हो गए उसने बातचीत कर दिया, अभी तक इसका खबर कुछ है ही नहीं. ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आया है, दैट्स अबाउट ऑल. बट बाय नाउ देयर शुड बी आर्टिकल्स, देयर शुड बी टॉक्स, देयर शुड बी discourses, there should be seminars. We should have taken it up in international forum, right? So I think that is something which we need to do immediately. Okay. दूसरा ये है कि भाई देखिए, परसों के दिन एक बॉम्ब अटैक हुआ था वजीरिस्तान में, सुसाइड अटैक, जिसमें तकरीबन 19 पाकिस्तान के जवान मर गए. और वहां का हालत बहुत कस्ता है खैबर पख्तूनख्वा में. सो उसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये. वहां तो हालत बिगड़ता जा रहा है. और टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम देयर, लोग पूछेंगे ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप इधर की बात कर रहे हो, उधर क्यों आपके लोग मर रहे हैं, आपके आर्मी वाले मर रहे हैं. वहां से तो इंडिया ने कुछ नहीं किया, ना कश्मीरियों ने कुछ किया, ना कश्मीर का लेना देना कुछ है ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में. आप क्यों ऐसे बात कर रहे हो? कोई पूछ नहीं रहा उससे, उसको डाइवर्ट कर रहा है सबका नजर इधर कि कश्मीर के ऊपर कुछ जंग चढ़ा दो, कुछ ये कर दो, वहां का हालत मतलब इट विल टाइड ओवर. सो ही इज डाइवर्टिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तीसरी बात यह है कि बलूचिस्तान का हालत, वहां तो हालत हर रोज बिगड़ता जा रहा है, राइट? और ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल बलूचिस्तान. बलूचिस्तान में बहुत नरसंहार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं. वो महरंग बलूच को पिछले एक महीने अभी 3 महीने से वो जेल में बंद है. और उसका जो अतौला मैंगल है, वो उसको भी अख्तर मैंगल, राइट, जो बीएनपी का सरदार है, उसको भी आउट कर दिया है. सो वहां कहानी कुछ और ही हो रहा है बलूचिस्तान में. वहां का जितने माइंस हैं ये अमेरिका के बेचने में तुला हुआ है. ऑलरेडी आधा बलूचिस्तान तो इन्होंने चाइना को बेच दिया, अब वो अमेरिका को ले आए चाइना को काटने के लिए. ये सब कहानी सबको पता नहीं है कि ये खेल क्या कर रहा है, क्योंकि अभी चाइना को पैसा नहीं दे सकता वापस. अगर अमेरिका को इधर लेके आ गया तो ये इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा देगा. तो फिर चाइना क्या बोलेगा, ठीक है तो आप पैसा मत दो, हम यहाँ काम अपना चलाएंगे. सो इज एक्चुअली फंस आउट चाइना इन दिस होल स्टोरी. चाइना फंस गया है अभी. चाइना को एक नया पैसा वापस नहीं मिलेगा. अमेरिका को भी टोपी लगाने वाला है ट्रम्प को. बट फर्क यह है कि ट्रम्प सबको टोपी लगा रहा है, वो अलग बात है. और ट्रम्प के बिना ये चल नहीं सकता, राइट? क्योंकि ट्रम्प ने बोल दिया कि भाई इसको कि वहां रेकोडिक में बलूचिस्तान में जो कान है, जिसमें सोना है, जिसमें कॉपर तांबा है, उसके अंदर वो इन्वेस्ट करेगा, उसको चाहिए, और ये पैसा इसको देगा, इसको बना देगा अमीर. और फिर ये क्रिप्टो डील है, उसके लिए भी वो कहता है मैं पाकिस्तान में आऊंगा उसके लिए. तो ये चाइना को अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? अमेरिका को खुश है कि ये आ जाएंगे. तो ये जो कहानी हो रहा है ना, ये 3-4 चीज जो है, इट्स नॉट देयर इन द मीडिया. एक नया पाकिस्तान उभर के आ रहा है हमारे सामने, और वो पाकिस्तान जिसके पीछे चाइना अमेरिका खड़ा है अभी. आफ्टर ऑल ये गया ट्रम्प के गोद में बैठ गया यूएसए जाके, और वहां लंच किया, और ट्रम्प ने भी इसको अच्छा खातिर किया था. इनफैक्ट 2 घंटे इसके साथ बात किया. क्या बात किया हमें पता नहीं अभी तक, तो उसका कोई जिक्र नहीं है. हाँ, लोगों का मानना है कि वो ईरान के अगेंस्ट अटैक से पहले इसको बुला के इसको बोला कि भाई हमें अटैक करने दो. ये तो हो गया, अटैक हो गया. और पाकिस्तान से मेरे का डाउट ही नहीं है कि यूएवीज उड़े होंगे, और पाकिस्तान के एयरबेसेस को इस्तेमाल किया होगा अमेरिका ने, और ये चुप बैठा है. और उसके बाद
पूरा पाकिस्तान बोल रहा है कि हम ईरान के साथ हैं, इसराइल के खिलाफ है, पर इस इंडिविजुअल ने पाकिस्तान को बेच दिया और ईरान को बेच दिया। ये चीजें जो है, ये आई मीन इट्स वेरी फनी कि इंटरनेशनल ओपिनियन में या मीडिया में या इसमें है ही नहीं। सो दिस इज द होल थिंग जो नया खेल हो रहा है वहां। व्हाट इज द न्यू स्टोरी? व्हाई इज असीम मुनीर सो कॉन्फिडेंट कि ये कुछ भी कर सकता है? और वो इसीलिए कि यूएसए के पीछे है, राइट। और आप देखेंगे ये शहबाज शरीफ, जब से ये यूएसए होके वापस आया है, शहबाज शरीफ ने चोंच नहीं खोला आज तक, चून नहीं खोला। बैठा है एक कोने में, उसको बता दिया गया है कि भाई आप बैठो चुपचाप, आप बात मत करो। सो ओनली असीम मुनीर इज स्पीकिंग। और असीम मुनीर ऐसा शातिर आदमी है कि ये कम बोलता है, राइट। लोग सोचते हैं कि ये बेवकूफ है, बेवकूफ नहीं है, बहुत बहुत खतरनाक आदमी है। ये जब भी बोलता है कुछ ना कुछ होता है। सो ही हैज स्पोकन अगेन। ये इससे पहले कि वो पहलगाम के इवेंट के बारे में, इस इंसिडेंट के से पहले हुआ था, इसका बातचीत ऐसे अभी बात कर रहा है। सो देयर इज समथिंग ऑन, वी शुड नॉट बी कॉट विद फ्लैट फुटेड। एंड वी शुड आल्सो रियलाइज कि भाई देखो, अमेरिका जो है अभी पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। एक नया पाकिस्तान में क्या है कि अमेरिका इधर परमानेंट रहेगा किसी न किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि जब तक पाकिस्तान में अमेरिका के पैर नहीं है, वो ना ईरान को कंट्रोल कर सकता है, ना अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, ना चाइना को कंट्रोल कर सकता है, ना इंडिया को कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने का बड़ा क्लियर उद्देश्य है। ये चारों देशों को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर ये चारों देशों को अमेरिका कंट्रोल नहीं करेगा तो पूरा स्थिति मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हिसाब से खतरा है। सो पाकिस्तान में रहेगा और उसका फायदा ये उठा रहा है। सो वी ऑल्सो नीड टू थिंक हाउ टू हैंडल दिस। अगर कुछ घटना हो गया कल के दिन, तो हमारा मोदी जी ने तो बोल दिया कि भाई देखिए, अगर कुछ टेररिस्ट अटैक भी हो तो वो युद्ध का समान। तो अगर कुछ टेररिज्म करेगा, क्या हम उसको युद्ध की और लेंगे? और वी रेस्पॉन्ड लाइक एज अ वॉर। वी शुड हैव, दैट्स व्हाई आई सेड पहले से शुरू जो मैं, अगर ये कुछ करेगा इसका ताबड़तोड़ जवाब होना चाहिए, चाहे वो ब्रह्मोस स्ट्राइक क्यों ना हो या जो भी हो, या इनडायरेक्ट मेथड क्यों ना हो, जो भी हो, वी शुड हैव अ वेरी क्लियर प्लान एज टू हाउ टू डील विद पाकिस्तान। बिकॉज द न्यू पाकिस्तान जो उभर के आ रहा है इज अ डेंजरस पाकिस्तान, इज अ डिफरेंट पाकिस्तान, राइट। एंड जो अगर लड़ाई भी जाएगा तो ये लड़ाई पुराना, ये जिस तरीके से ऑप्शन दूर में हो उस तरीके से नहीं होगा, कुछ और ही होगा। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। सो आई होप आई बीन एबल टू पुट अक्रॉस ऑल, इस हर एक पहलू, ये जो व्याख्या इसने दिया है इसके बारे में बताएं। अगर इसके बारे में कुछ सवाल है तो ठीक बताइए, नहीं तो हम अगले आपके सब्जेक्ट में जाएंगे। सर नेक्स्ट में चलते हैं because we've covered this one. तुलबुल प्रोजेक्ट, नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? क्या चीज है ये, और इस पे आप काम करना शुरू हो गए हैं? राइट, ओके ओके। इसके लिए ना वो मैप है, वो आप उसको आप कीजिए। मैप जो है ये दूसरा, नीचे मैप है, हाँ आप ये देखिए। I think Sir Cordell got disconnected by mistake while he's joining. एक और पॉइंट ऑफ व्यू था, लेट मी जस्ट सी व्हेन इज ही कमिंग। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। My apologies.
आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया जी। सॉरी सर, आई थिंक इट गॉट डिस्कनेक्टेड। There is no problem. There is no problem. I'll just put that slide on again. जी Right? Okay. Okay. So if you have a look at this, अगर हम देखेंगे तो नीचे से सतलज, रावी, ब्यास, ये तीनों जो नदी है वो पहाड़ से नीचे आते हैं और काफी देर तक अपने पंजाब के प्लेन्स में चलते हैं और पाकिस्तान में चले जाते हैं। पर रावी के बाद जब आप जम्मू पार करके ऊपर जाते हो तो ऊपर चढ़ना पड़ता है, राइट, टू पटनी टॉप। फिर नीचे जब जाएंगे घाटी के अंदर, उस घाटी में चनाब बहता है। फिर चनाब से आगे जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर बनिहाल यानी पीर पंजाल रेंज पार करते हैं। फिर कश्मीर की घाटी में जाते हैं। जब कश्मीर की घाटी में जाते हैं वहां झेलम बहता है, ठीक है। और झेलम जो है वो पीओके के अंदर बारामूला के बाद वो पीओके में चला जाता है। सो झेलम जो है वो कुछ हिस्सा पूरा कश्मीर घाटी के अंदर पीछे से शुरू होता है, अनंतनाग वगैरह के आसपास से, और जाता है वुलर बराज तक। इनफैक्ट इट गोज थ्रू दल लेक के थ्रू वुलर बराज से थोड़े दूर उरी, बारामूला, और उसके बाद इट गोज इनटू पाकिस्तान। अभी वुलर बराज जो वुलर लेक जो है, इट इज वन ऑफ द इट्स द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, राइट। और उसके ऊपर हमने एक बराज डाला है पानी रोकने के लिए। इसका काफी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है, राइट। ऑब्जेक्शन क्यों है कि वो सोचते हैं कि अगर वुलर बराज के ऊपर हम पानी रोक देंगे तो आगे झेलम में पानी नहीं होगा। पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये इट्स अ 24 फुल थिंग, इट वाटर कीप्स गोइंग। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज झेलम नदी जो है, देयर इज नेविगेशन फीजिबल थ्रू आउट झेलम नदी पीछे तक टिल वुलर। ओके, अगर हम ये नेविगेशन चलेंगे तो काफी गुड मूवमेंट, और जो भी है मूवमेंट बाई शिप्स हो सकते हैं बोट के जरिए। नॉट ओनली ये पीछे अनंतनाग तक जहां नीचे आते हैं बनियाल से, उस इलाके से लेकर अदर एंड ऑफ कश्मीर तक यू कैन नेविगेट झेलम जहां भी जाता है। राइट, इट्स अ नेविगेबल रिवर। पर समर मंथ्स में उसमें पानी नहीं होता, थोड़ा कम हो जाता है। समर मंथ्स में जब पानी कम हो जाता है तो नेविगेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, so you must focus on Jhelum and that part which is in India इसमें, right। तो हमारा प्रपोजल क्या है कि वुलर के ऊपर जो बराज लगाया है, और उसको हम बोलते हैं तुलबुल बराज, राइट। एंड नॉट ओनली दैट, वी सेड लुक, वुलर में झेलम में थोड़ा पानी कम हो जाता है बारिश समर मंथ्स। उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है किशनगंगा प्रोजेक्ट, राइट। वो किशनगंगा प्रोजेक्ट से हम पानी जो बहता है हम वुलर लेक में ड्रेन करते हैं। उससे क्या है कि वुलर लेक भर जाता है और ये नेविगेशन फीजिबल हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, एंड दैट नेविगेशन इज फॉर समर मंथ्स, नॉट विंटर मंथ्स। विंटर बारिश के मौसम में तो काफी पानी होता है उधर, लीन सीजन में। पाकिस्तान हैज ऑब्जेक्शन टू इट। आज तक हम ये कर नहीं पाए क्योंकि as per Indus Water Treaty, Pakistan has to okay that, and Pakistan never okayed it. Pakistan never okayed it because they didn't want our people to, benefit. ये बोलता रहता है ना, कश्मीर कश्मीरी कश्मीरी। ये जो भी हम करते हैं ये कश्मीरियों के लिए फायदा है। अगर झेलम में नेविगेशन हो जाए तो कश्मीरियों का फायदा है। और मैं चेन्नई में बैठ के उसका क्या फायदा उठाऊंगा, या आप दिल्ली में बैठ के आपका क्या फायदा होगा? कुछ नहीं है। या और कहीं कश्मीरियों का फायदा है, और कश्मीरियों के खिलाफ ये काम करते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना बाहर निकल के आता नहीं है। तो नाउ दैट इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन हो गया,
गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि भाई हम तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट चलाएंगे पूरा. And that is why Omar Abdullah has said it will go ahead at this point of time. And in short, this is the mota तौर पर this is the story about Tulbul Barrage. इससे हमें फायदा होगा पर पाकिस्तान को घाटा नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ. बट जो हमें घाटा हो रहा था इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन के तहत, ये हमारे लिए इट इज इक्वलाइज्ड. So it doesn't, you can't, because you see, झेलम का पानी जो है ना आप रोक नहीं सकते हो. झेलम और इंडस का पानी आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि देयर इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लिमिटेड यूटिलिटी ऑफ दीज वाटर्स इन इंडिया. पहाड़ी इलाका है, आप वहां खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो. मैक्सिमम आप यू कैन यूज इट फॉर इरिगेशन, सॉरी यू कैन यूज इट फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जितना आपने डैम्स बना लिया. सो मोटा मोटा तौर पर ओनली फॉर नेविगेशन इज देयर. इंडस में तो आप कुछ कर नहीं सकते. ओके, मेन चीज है जहां आप कुछ कर सकते हो, जो आपको फायदा होगा और पाकिस्तान को नुकसान होगा या पाकिस्तान को इफेक्ट होगा, वो है चेनाब. रावी और सतलज और ब्यास का पानी वैसे भी नहीं जाता. चेनाब के ऊपर हमें गौर करने की जरूरत है. किस तरीके आप चेनाब का पानी डाइवर्ट करके नीचे लेके आ सकते हो, उसका तरीके हैं. इसके अलावा रावी और सतलज के ऊपर भी ऐसे, रावी और सतलज का पानी हालांकि ये 100% हमारा है, फिर भी पानी जाता है. और मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, अगर बाकी सब छोड़ो, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक जितना पानी हमारे लिए ऑथराइज है, अगर हम उसका यूज करेंगे तो पाकिस्तान में सूखा हो जाएगा. ये वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, विद इन द इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजंस, इफ यू टेक व्हाट इज ड्यू टू यू एंड यू यूज इट, हमारा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे. राइट? सो दिस इज समथिंग वी हैव टू पोजिशन आवरसेल्व्स एंड से, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तो सस्पेंड कर दिया, बट उसका जो ट्रीटी का जो जितने पॉइंट्स हैं, हमने उनका उल्लंघन नहीं किया अभी तक. वी आर स्टिल ऑपरेटिंग दिस एंटायर थिंग विद इन द कन्फाइंस एंड द एग्रीमेंट्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी. आगे जब हम चेनाब के ऊपर डैम्स बनाएंगे, कैनाल्स बनाएंगे, पानी डाइवर्ट करेंगे, वो आगे की बात है. अभी तक हमने वी हैव नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. वी हैव स्कोप बट वी हैव नॉट डन सो फार. तो ये है मोटा मोटा तौर पर अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी एंड तुलबुल बराज एंड दिस थिंग. तो is this clear, or you can have we can have a discussion on this? Right. No sir, I think we should move forward Okay. because बुलबुल में अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आए नहीं है. once the decision is taken and once other things move forward, then उसमें details Yeah. not. But lot of meetings are going on in Pakistan and also in China in the background, and they are very interesting. देखिए, ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना ने कुनमिंग में एक मीटिंग किया है, और ये इट वाज हेल्ड बाय चाइना. चाइना ने बुलाया. चाइना तो देख रहा है कि एक मौका है कि टू यूज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अगेंस्ट इंडिया. एंड दे आर, यू सी, SARC is now defunct. SARC, which was supposed to be the flagship program for this area, is defunct. उसके तहत हमने बिम्स्टेक शुरू किया है, राइट? बट दैट्स आल्सो नॉट टेकन ऑफ, एंड उसमें बांग्लादेश का प्रॉब्लम चल ही रहा है. एंड चाइना इज मेकिंग यूज ऑफ दिस नाउ, and it has called Pakistan and Bangladesh and held a meeting in Kunming, and it wants to form something like an alternate SARC here without India. And ये क्या है कि ये नेपाल को भी पूंछ मरोड़ेंगे,
श्रीलंका को भी दबाव डालेंगे, मालदीव्स को भी दबाव डालेंगे अभी, राइट, टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन. So this is the thing which they've started. Well, and all this has been, इनका जो मेन आदमी है चाइना से, सुन वीडोंग, ही इज द वाइस मिनिस्टर हुज ये जो पहल किया है इनको बुला के. एंड सुन वीडोंग जो है, इससे पहले हमारे देश के अंदर चाइना का एम्बेसडर था. सो ही नोस, 3 साल चाइना का एम्बेसडर था. पूरा कोविड के दौरान ये चाइना का एम्बेसडर था. यहाँ से जाने के बाद वाइस मिनिस्टर बन गया. अब इसी को ये बिकॉज ही नोज इंडिया, he has been given this task of चलाओइंग this. अब देखेंगे. देखिए, बात यह है कि यहाँ हमारा एक वीकनेस है, राइट. एक वीकनेस ये है कि पॉलिटिकल वीकनेस है. ये पॉलिटिकल वीकनेस को ये फायदा उठा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों उठाएंगे. एक पॉलिटिकल वीकनेस है कि हमारे अंदर काफी कम्युनिस्ट है, और ये जो कम्युनिस्ट हैं ये आज तक वो चाइना के पीछे पड़े रहते हैं. यहाँ तक हमारे एक चीफ मिनिस्टर है कम्युनिस्ट, जो जी जिनपिंग को अपना बर्थडे के ऊपर ग्रीटिंग भेजता है, हैप्पी बर्थडे. ओके, ये मैं कोई छुपा छुपी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा सोशल मीडिया में है. ही ग्रीट्स, यू हैव दैट काइंड ऑफ अ चीफ मिनिस्टर. प्लस वी नो पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑलवेज कम्युनलिज्म, आइडियोलॉजी, रिलीजन ये एक्सप्लॉइट करते हैं. और बहुत लोग हमारे यहाँ स्लीपिंग सेल्स हैं, और उनको ख्वाब है कि वो पाकिस्तान चले जाएं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो आईसिस वगैरह में भी शामिल हो गए हमारा देश से. सो दीज पीपल विल नाउ ट्राई एंड एक्सप्लॉइट दैट, और यू विल सी दिस स्टोरी स्टार्टिंग. आई मीन, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज समथिंग विच इज पोस्ट सिंदूर फिनोमिनन होने वाला है. देखिए, पूरा दुनिया में ये जो प्रॉक्सी वॉर का जो लहर चला था पिछले 20-25 साल से, चाहे वो ईरान हैड प्रॉक्सीज की पैलेस्टाइन में, हमास, हौतीस, हिजबुल्लाह, ये सब टूट गए, राइट. एंड ईरान के अंदर भी जितने वो कट्टरपंथी है वो काफी हद तक बिखर गया है. उसी तरीके से आप पाकिस्तान में भी देखिए, पाकिस्तान के जितने प्रॉक्सीज हैं, एलईटी हो या जेईएम हो, उनको काफी चोट पड़ा है. अभी ऑप्संदूर में भी काफी चोट पड़ा है. वो दोबारा कड़ा कर रहे हैं, पाकिस्तान कड़ा करने की कोशिश कर रहा है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. इसीलिए असीमुर मीर ने कश्मीर का रट लगाया पहले, और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर एलसी के साथ दोबारा बना रहे हैं. सो दे विल एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस इन इंडिया. सो वी नो दिस इज गोइंग टू हैपन. So, इसके against our intelligence agencies and our law enforcement agencies, state, center, have to get up and start working on it at this point. And इनके यहाँ जितने ये or the people who have wrong ideas within India, you have to उनको डंडा लगाना पड़े की जरूरत है अभी. अगर हम इनको डंडा नहीं लगाएंगे, कुछ और कांड अंदर करेंगे, और ऐसे कांड करेंगे. अगर आप कल के, जैसे आपको याद है, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले कोयम्बतूर में ब्लास्ट हुआ था, राइट. और चेन्नई में भी ब्लास्ट हुए थे, और कर्नाटक में भी ब्लास्ट हुए थे, और ये सब ये इंडियन मुजाहिदीन ये ऐसे, राइट. बॉम्बे में ब्लास्ट हुए थे. ऑल दीज इन द hinterland, they are at risk today. The confluence of communists and jihadists is dicey. इसका कोई क्या है कि मिलिट्री जवाब नहीं है. So we have to be very clear कि करना क्या है. So there are methods. I'm sure the government knows. हम बात कर रहे हैं आज, but I'm sure things will unfold. And we need to be very careful about it. This is the thing this thing. बाकी बांग्लादेश और चाइना के बीच में ट्रेड ना हो सकता है, ना होगा. अगर हो भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमें.
राइट? बांग्लादेश से कितना ट्रेड कर लेंगे बांग्लादेश और चाइना? ज्यादा नहीं। बांग्लादेश को आज के दिन उनको चावल की जरूरत है, कौन दे रहा है? वो तो हमें भीख मांग रहा है। अब पाकिस्तान का अंदरूनी हालत वैसे भी खराब है, राइट? सो चाइना क्या करेगा पाकिस्तान को? राइट? वी नथिंग विल हैपन। और एक और चीज है, वी शुड बी कॉग्निसेंट ऑफ कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरार हो सक पैदा हो सकता है। क्यों? यूएसए के वहां प्रेजेंस के जरिए। सो वी शुड स्टार्ट दैट। किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये दरार पैदा करो बिटवीन यूएसए एंड चाइना, so that Pakistan starts looking inward, China starts looking inward. चाइना के भी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ तिब्बत में कर सकते हैं हम, कुछ पीओके में कर सकते हैं, कुछ बलूचिस्तान में कर सकते हैं। उसने बोला ना, डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। हमें भी देना चाहिए डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट बलूचिस्तान में। उसमें क्या है? डिप्लोमेटिक सपोर्ट हम देंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई उनको फ्रीडम दो। वो वही भाषण जो इसने कश्मीर के अगेंस्ट बोला है, कल के दिन हमारा कोई मंत्री जाके खड़ा होके बलूचिस्तान के भी बात कर सकता है, पीओके के बारे में भी बात कर सकता है। और मेरा ख्याल में पीओके इज कॉमन टू पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। मैंने से पीओके कश्मीर, द कश्मीर रीजन, राइट? उनका भी आफ्टर ऑल चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, लद्दाख, अक्सर कश्मीर का ही है हिस्सा। मेरे हिसाब से ये वक्त आ गया कि हम पीओके में कुछ करें, पॉलिटिकल आउटरीच। हमारा प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया कि भाई अगला बातचीत होगा पीओके के ऊपर, बोला है ना। ये मैं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ। और हमारे रक्षा मंत्री ने भी ये ही बताया कि देखिए, एक दिन वो आएगा जब पीओके वाले खुद आके हमारे साथ मेल मिलाप करेंगे और बोलेंगे कि आपके साथ मिलना चाहते हैं हम क्यों इसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट ना दें? हम क्यों इसके लिए मॉरल सपोर्ट ना दें एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट क्यों ना दें? ये शुरू करो पीपल टू पीपल। अगर हमारे यहाँ के कश्मीर वासी, जम्मू वासी बोले कि भाई उनके यहाँ जितने जम्मू और अक्रॉस एलओसी रहते हैं, उनके साथ मेल मिलाप करना शुरू कीजिए। उनको बोलिए कि भाई आप हमारे साथ, आवाज होना चाहिए लोगों का। जब आवाज लोगों का आएगा तो वहां सुनाई देगा। और जब वो लोग खड़े होंगे अपने आजादी के लिए, तब तख्ता पलटेगा। नहीं तो ये जिस तरीके से अगर यही है कि वो कुछ बोला है कि यहाँ कुछ कांड होगा तो हम कुछ करेंगे, तो ये सिलसिला पिछले 50 साल से चला आ रहा है। नया चीज क्या है? जैसे मैंने हर वक्त हर आर्मी ऑफिसर या आर्मी का या फौजी बोलता है, पिछले लड़ाई दोबारा रिपीट नहीं होगा, अगला लड़ाई पिछले लड़ाई की तरह नहीं होगा। सो इसकी स्थिति बदली करो, आज ही स्थिति बदली करो, इससे पहले कि वो कुछ करे हम कुछ करें। प्रोएक्टिव, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। और ये भी देखा गया है, चाहे ईरान में क्यों ना हो या पाकिस्तान में क्यों ना हो, जो आदमी बैठा रहता है पीछे, उसको कुछ फायदा नहीं है। सी, व्हेन डिड वी स्टार्ट गेनिंग? जब हम ऑफेंसिव गए, टेररिस्ट कैंप तोड़ दिया, उनका 11 एयरफील्ड तोड़ दिया, तो फिर जाके पाकिस्तान जाके पैर पकड़ लिया कि भाई हमें माफ कर दो। ऑफेंसिव करो, डंडा लगाओ, राइट? हाँ, मैं भी हर एक आदमी, एक आम नागरिक की तरह मैं भी थोड़ा भावुक हूँ कि अगर ये ऑप सिंदूर 1-2 दिन और चलता तो पाकिस्तान के पूरा टायर पंचर हो जाता। अब उसका थोड़ा हवा भर गया, बट खैर वो तो एक एक वो भावुक होके मैं बोल रहा हूँ। बट अगर इफ आई पुट ऑन माई जियोपॉलिटिकल हैट एंड मिलिट्री हैट, ये सही हुआ है, निर्णय सही लिया है, राइट? बट
अमेरिका ने जो किया वो हम वी आर इन सिचुएशन, वी नीड टू डील विद इट. So what I want to say towards the end is that देखिए ये एक स्थिति पैदा हुआ है and we need to be careful about this हालत. It's not only what ये जो तीन चीजें के बारे में हमने बात किया, ये तीनों चीज कनेक्टेड है. ये एक नया पाकिस्तान के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं. नॉट नया पाकिस्तान जिस तरीके से इमरान खान चाहता था, बट किसी और तरीके से. So how do we use this? Army and Air Forces and Navy is not the answer to everything in Pakistan. The answer to Pakistan is political. Answer to China is also political. वो तिब्बत में है political. And एक चीज जो चाइना डरता है वो है political. कोई भी चीज आप political करो, चाइना डरता है. और पाकिस्तान का वीकनेस आज के दिन politically weak है. We should exploit that. So I think we've covered all these issues. अगर और इसके बारे में कुछ आप there is one thing which lot of viewers sir have not realized. जब आसिम मुनीर कोई भाषण दे या नहीं दे, जब वो they project that India is the aggressor, जब वो fake narrative or whatever, तो their entire population gets behind them. चाहे वो भूखों मर रहे हो, पानी ना मिल रहा हो, मतलब हालत बुरी हो. So basically उनकी जनता को टैकल करना जरूरत है. There has to be a wedge between the army and the common masses. तभी हम उनसे जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वहां से आती है पूरी की पूरी. जी आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है. अगर आप देखेंगे तो ऑफ सिंदूर से पहले, पहलगाम से पहले ये हालत था. पहलगाम से पहले देयर वाज अ वेज बिटवीन द आम जनता पाकिस्तान का और आर्मी. वो आर्मी को नकारते थे और आर्मी के दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर ओन आर्मी. इवन व्हेन पहलगाम हैपेंड, पाकिस्तान वाज वरीड, अब क्या होगा. ओके, ये तो विवादास्पद चीज है कि क्या ऑप सिंदूर करके हमने गलती किया या सही किया. अगर ऑप सिंदूर ना करते, कुछ और करते, मान लो ये राइट, तो ये जो the people might have still been against the army and things might have been different. Okay, but ऑप सिंदूर had to happen. It happened and it's good it happened, क्योंकि ऑप सिंदूर से इंडिया को काफी फायदा हो गया, राइट. और एक फायदा जो आप अभी बताना चाहता हूं कि ऑप सिंदूर में सबको एवरीवन केम टू नो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की ताकत क्या है. आज ब्राजील ने हमें न्योता दिया है और दे वांट वेपन डील्स करना चाहते हैं और इसका बहुत फायदा है. सो दैट्स ओके. आज के दिन अगर हम देखेंगे तो आसिम मुनीर एक टाइगर के ऊपर दौड़ रहा है, टाइगर बन के, राइट. वो बड़ा कुछ बात कर रहा है, पूरा देश उसके पीछे है. कुछ दिन दीजिए, सब्र करना चाहिए, क्योंकि 75 साल से हम इसको झेल रहे हैं, तो 6 महीने सही तो 8 महीने और सही, राइट. और वी हैव वेज. ऐसी बात नहीं है कि हम इनको निपट नहीं सकते. अभी मान लो FATF है, FATF ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई देखिए, जितने भी अभी तक तहकीकात हुआ है पहलगाम के बारे में, रास्ते तो पाकिस्तान आ रहे हैं. रास्ता तो पहलगाम का रास्ता पाकिस्तान से शुरुआत हो रहा है. और ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट 2 बार पहले किया है, 2015 में पेरिस अटैक में, और उसके बाद अपना पुलवामा के बाद उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया है. ये तीसरी बार FATF ने ये स्टेटमेंट दिया है. इसका मतलब उनको भी पता चल रहा है कि भाई ये पाकिस्तान से शुरू हुआ है. अगर हम साबित करके दे दें कि भाई ये पाकिस्तान से शुरू हुआ है, और ये मेरे ख्याल में ज्यादा दूर नहीं है, और FATF को सही प्रूफ दे दें, तो FATF का रेस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर आ सकते हैं. एक अगले इसके लिए मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने में वैसे भी होने वाला है. अगर हम प्रूफ दे देंगे, FATF will have no choice but to put them on a grey list. एक बार पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में चला गया,
राइट? तो फिर क्या है, इनको आईएमएफ से पैसा मिलना मुश्किल है, बाकियों से एड मिलना मुश्किल है, सब बंद हो जाएगा और अगले 2 साल तक वो ये 1-2 साल तक ये झेलते रह सकते हैं। पर बात यह है कि इसमें थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रम्प जो है वो इमीडिएटली एफएटीएफ में इसको जाने नहीं देगा, क्योंकि उसका इट्स अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट टुडे फॉर पाकिस्तान टू बी इन एफएटीएफ। सो उसका टाइमिंग की बात है, और ये बात इसीलिए मैंने बोला ना पहले कि अमेरिका का क्या रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान का। कुछ दिन चलने दीजिए, कुछ धीरे धीरे push the story a little. Natural weakness of Pakistan will start manifesting. The natural tendency of America to use Pakistan and throw it away will also start manifesting. Wait for that day. पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा. It's not, you should be खाली नहीं बैठ सकते ना, प्रॉब्लम ये है. so we'll do some, yeah, right, be patient, एक शिकारी की तरह बैठो, जब शिकार अपना जाल में आ जाएगा तब जाके उसको जाल बंद करो. So this is the way I look at it. Yeah, बोलिए. और So with that we'll close the discussion and take some comments.